Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video we are going to continue the topic for 11th class. Yes, so for today video we are discussing over the consumer equilibrium, and in previous video I have already started with the behavior of consumer. I have already taught you about total utility. I have taught you about marginal utility. Now what we are going to do is related to this fundamental psychological law. It is called psychological law. Like I told you, whatever we consume is just our internal feeling, internal assumption, internal satisfaction. But we need to express them in numbers, which was introduced by Marshall. Marshall said that we cannot judge the satisfaction of the people. For this reason, we have to give them a number. So here we started with giving them a number, and then we measure our satisfaction at different level of consumption. Right? So here we are going to discuss the same scenario in continuation of it, the consumer behavior. Topic today is law of diminishing marginal utility. Which topic we are discussing? Law of diminishing marginal utility. So before I start, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe it. So here we'll begin. The topic is covering here is law of diminishing marginal utility in consumer equilibrium, because we need to understand what does this law say. Accordingly, first we have to understand some introduction of this law. This law was first propounded by H.H. Gosson. किसने इसको propound किया? Means इसको introduce किसने किया? H.H. Gosson ने. Right? Later it is formulated by Alfred Marshall. इसको फिर बाद में जो proper तरीके से reproduce किया गया, proper तरीके से formulate किया गया, that was done by Alfred Marshall. It is also known as Gosson's first law. This line is very important. तो इसको तो आप मतलब आप बिल्कुल अच्छे से रट लें या इसको दिमाग में रख लें. This law, which law? Law of diminishing marginal utility is Gosson's first law. तो ये जो law है वो इनका पहला law है, और इसीलिए इसको गॉसन्स का फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं. अगर एग्जाम में आ जाए कि एक्सप्लेन द गॉसन्स फर्स्ट लॉ, सो गॉसन फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म. यूटिलिटी जो डिमिनिशिंग हो रही है, देखो सीधे सीधे समझना में, डिमिनिशिंग यानी गिरना, डिक्लाइन होना. मार्जिनल यूटिलिटी का डिक्लाइन होना. हमने जो कल प्रीवियस वीडियो देखी थी उसमें देखा था हमने, टीयू तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज फॉल. इट इज बिकॉज द लॉ एंड आवर फीलिंग सेज when we consume the same commodity again and again without a break, this is the condition of the law. Without a break, if we are consuming the same commodity, definitely the additional satisfaction with extra unit will start declining. That additional satisfaction with extra unit is called marginal satisfaction, marginal utility. क्योंकि हम satisfaction किस में मेजर कर रहे हैं? यूटिलिटी में. राइट? मार्जिनल सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन विच स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. और ये बहुत ही मतलब यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं इसको. एक बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मैं एक रैशनल कंज्यूमर की बात कर रही हूँ, जो एबनॉर्मल होते हैं, जिनको थोड़े प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रेन की, जो माइंड सेट नहीं होते, उनके केस में नहीं है, क्योंकि वो किसी भी टाइम ज्यादा खा सकते हैं, किसी भी टाइम कम खा सकते हैं. दैट्स ऑल डिपेंड ऑन देयर मेंटल स्ट्रक्चर. बट द कंज्यूमर हु इज रैशनल, मेंटली फिट, फिजिकली फिट, उसका बिहेवियर कैसा होगा? लाइक आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल. आपको मैं कह दूं कि आप एक चेयर पे बैठ जाओ, आपके सामने एक टेबल लगा दी, अब 1 घंटे तक जो आपके सामने आएगा वो आपको खाते जाना है. राइट? तो सपोज आपके सामने हमने लगा दी पिज्जाज की प्लेट, 1 पिज्जा प्लेट, 2, 3, 4, 5, 6, हमने 6 पिज्जा प्लेट्स लगा दी. आपने पिज्जा देखती तो पहले आप बहुत खुश हुए, पहली प्लेट खाया, आप बहुत हंग्री थे, आपको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, सो योर सेटिस्फेक्शन एट फर्स्ट लेवल ऑफ पिज्जा प्लेट वाज हाई. राइट? अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे पिज्जा कौन खाता है? यही तो बात है, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं. जब हम किसी गुड का कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होने लगता है. अब मैं कहूं कि आपको सेकंड भी खाना है, कंडीशन क्या है? आपको कोई ब्रेक नहीं लेना, कंटिन्यूशन कंज्यूम करना है, वहीं बैठे रहना है. राइट? तो आपको सेकंड पिज्जा ऑफर करा गया. अब आप खाओगे उसको और आपसे पूछा जाए क्या आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जो पहले था? व्हाट यू विल आंसर? नो. राइट? फिर थर्ड खाओगे,
फिर आप कहोगे कि जो सेकंड से था वो थर्ड पे, यानी सेटिस्फेक्शन लेना। अब क्या हुआ इसमें, स्टेटमेंट कैसे बदलेंगे, अब इस चीज को समझना। फर्स्ट प्लेट खाई, व्हाट अ लव, व्हाट अ टेस्टी पिज्जा इट इज, इट इज रिच ऑफ सो चीज एंड ऑल इज देयर, मतलब चीज से भरा हुआ है, हमें बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत मतलब हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन एंड यू आर एक्सप्लेनिंग इट। सेकंड पे आए, सेकंड सेम पिज्जा है बट अब आपको उसमें थोड़ी सी कमी दिखेगी, थोड़ा और कुक होता तो अच्छा लगता, राइट। थर्ड पे आए, थर्ड पे आपने कह दिया इसमें चीज बहुत ज्यादा है, ये इतनी भी नहीं खाई जा सकती। तो ये स्टेटमेंट क्यों बदला, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे आपको भूख थी, आपने खाया, आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला, आपका स्टमक की जो रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिल हो गई। सेकंड खाया, आपने खा लिया, आपकी स्टमक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट हो गया। थर्ड खाया, फिर आपको कमी जो दिखी चीज ज्यादा होने की, वो क्यों दिखी, क्योंकि आपका स्टमक ऑलमोस्ट फुल होने की कंडीशन पे आ चुका है। तो इस तरह से क्या हुआ, हम स्टेप बाय स्टेप हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट फॉर दैट पिज्जा वो स्टार्ट हो गए फॉल करना, यानी गिरने शुरू हो गए। सेम इन द केस, अब आपको जबरदस्ती कोई आके कहते हैं कि नहीं चौथा भी खाना है, व्हाट विल यू रिएक्ट, बस मेरा हो गया अब नहीं खाऊंगा। सो दैट पॉइंट व्हेन यू रियलाइज बस मेरा हो गया अब मैं नहीं खाऊंगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन, कंज्यूमर सैटिएटी, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल। और उसके बाद भी आपको जबरदस्ती खिला दिया जाए तो क्या होगा, नेक्स्ट विजिट इज टू डॉक्टर, राइट। तो जो खाया वो निकल गया, दैट कम्स टू नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो यही बात मैं आपको समझा रही हूँ। सेम इज हैपनिंग विथ इफ वी आर वेयरिंग सेम कलर ऑफ क्लोथ। हम कोई भी कपड़े पहनते हैं डिफरेंट कलर के पहनते हैं, क्यों, क्योंकि हम एक कलर पहन नहीं सकते कंटिन्यू। आपको बोल दिया जाए कि आपको कंटिन्यू शादी में जा रहे हो, किसी भी फंक्शन में लगातार अगर आपके यहाँ आ रहे हैं और आपको कहा जाए आपको रोज रेड पहनना है या रोज पिंक पहनना है, विल यू बी एबल टू wear it continuously for 5, 6, 7 days? No, you need change, and every day your statement will change. So this is how we behave, and the law then turned as law of diminishing marginal utility. So here is the meaning. Meaning क्या है, as more and more unit, मैंने कहा ना जैसे जैसे एक पिज्जा, दो पिज्जा, 3 पिज्जा, 4 पिज्जा प्लेट्स, as more and more unit of a commodities are consumed, goods जैसे जैसे हम कंज्यूम करने जाएंगे, the marginal utility, it is MU means marginal utility derived by the consumer for successive units goes on declining. यानी हर एक कमोडिटी जो पिज्जा की पहली प्लेट और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पे जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, उनसे मिलने वाला हमारा सेटिस्फेक्शन गिरता जाएगा। और ये हम कैसे पता करते हैं, जब हमारा स्टेटमेंट बदल जाता है। एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेना घर पे, जिनको चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना, सिल्क, डेयरी मिल्क सिल्क, एक जगह बैठ जाना, 5-6 पैकेट रख लेना और फिर खाना, और फिर रिकॉर्ड करना आपकी फीलिंग्स, कि फीलिंग्स आ कैसी रही हैं, चेंज होती जाएंगी फीलिंग। हो सकता है आपको 2 पहले अच्छी लग जाए, 2 के बाद बदलेगी, किसी को 3 अच्छी लगे उसके बाद बदलेगी, पर बदलेगी जरूर, दैट्स फॉर श्योर। सो जस्ट अप्लाई इट ऑन यू एंड प्रैक्टिस फॉर दैट। एक्सपेरिमेंट मेक्स मैन परफेक्ट, दैट्स व्हाट आई टेल यू। इवन मैं अपने स्कूल में भी स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, हमेशा अपने ऊपर अप्लाई करके देखो इस थ्योरी को, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट, राइट। सो हेयर वी आर डूइंग द सेम थिंग। तो जैसे जैसे हम सेम कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे, सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होगा। तो अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं, मैंने बोला ना ये एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए ये लॉ सक्सेसफुल रहा, और ये यूनिवर्सल लॉ है, ये ट्रूथफुल लॉ है। एक्सपेरिमेंट इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर ड्रामेटिक है, कंज्यूमर का बिहेवियर एवरी सेकंड बदलता है, इसलिए हमें अगर थ्योरी को डिस्कस करना है, हमें सच में पता करना है, तो हमें उसे कहीं ना कहीं तो बांधना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम उसे ओपन छोड़ देंगे तो हमें जो रिजल्ट चाहिए, जो हम सोच रहे हैं, वो नहीं होगा। अगर आपको चेंज एनवायरनमेंट मिलता रहे, ऑप्शंस मिलते रहेंगे, तो आपका सेटिस्फेक्शन कभी भी मेजर नहीं हो पाएगा विथ वन कमोडिटी, राइट, क्योंकि आपको वैरायटी मिल रही है, नहीं तो वो, दो नहीं तो तीसरा। तो इस वैरायटी को अगर आपको जज करना है एक्चुअल में कि एक से क्या बिहेवियर है, तो हमें इसको बांधना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड अजम्पशन। तो अजम्पशन क्या है, वो यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सेम, यानी कि सेम। अभी मैंने बोला ना 1 प्लेट पिज्जा, 2 प्लेट पिज्जा, 3 प्लेट, 4 प्लेट। इसका मतलब क्या है, हर प्लेट में पिज्जा का साइज सेम है और 6 ही उसके सेक्शंस हैं, यानी इसमें साइजेस चेंज नहीं होंगे, सेम साइज के ही पिज्जा आपको ऑफर होंगे, राइट।
सेकेंड है यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी स्टैंडर्ड, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन मतलब प्लेट टू प्लेट वो चेंज हो जाए, वो स्टैंडर्ड ही रहनी चाहिए। एक प्लेट में अगर चीज जितनी है वही दूसरी में भी सेम हो, तीसरी में भी सेम हो, चौथी में भी सेम हो, सब में बराबर बैलेंस ऑफ फूड, बैलेंस ऑफ प्लेट ऑफ पिज्जा होनी चाहिए, इतना सा भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए, राइट। कंटिन्यूस कंजम्पशन, दैट आई टोल्ड यू, अगर आप उठ के चले गए, घूम फिर के आगे फिर आके बैठ के खाओगे तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, अगर डाइजेस्ट हो गया, मजे हो गए, अब तो सब सेट हो गया, वापस आके खा लोगे, तो फिर कैसे जज करोगे अपना सेटिस्फेक्शन। फॉर दिस रीजन कंटिन्यूस कंजम्पशन अलाउड है, ब्रेक नहीं ले सकते हो आप, राइट। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपके टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, मार्केट में बहुत ऑप्शन है, ये नहीं तो वो नहीं तो तीसरा, तो ये ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, आपके पास एक ही ऑप्शन है, बस वही खाना है। घर में आए, भूख लगी, मम्मी ने पूछा कि आप मम्मी से पूछा क्या बनाया, दाल रोटी, अब भूख लगी है, दाल रोटी बनी है, क्या रिएक्शन आया, थोड़ा सा खराब रिएक्शन आया, बट क्योंकि पता है कोरोना वायरस चल रहा है, बाहर जाके खाना नहीं, खाना तो घर पे ही है, कोई चॉइस ही नहीं है, सो यू विल ईट इट। सो दिस इज हाउ देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आप कुछ बदल नहीं सकते हो, जो है वही लेना है। रैशनल कंज्यूमर, लाइक आई सेड, मेंटल डिसऑर्डर पर्सन पे हम इसको जज नहीं कर सकते। दोज हु आर मेंटली फिट, फिजिकली फिट, ओनली ऑन देम वी कैन जज दिस लॉ, राइट। सो दीज आर द अजम्पशन, मीनिंग एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। हियर वी हैव टेबुलर फॉर्म, लाइक मैंने कहा पिज्जा की फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट। भाई जोधपुर में मिर्ची बड़े बहुत फेमस है, तो मिर्ची बड़े पे ले लें, एक मिर्ची बड़े, दो मिर्ची बड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी 7 मिर्ची बड़े आपके सामने आपकी प्लेट में रखी, राइट। पहला मिर्ची बड़ा खाया, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, मौसम की डिमांड थी, बहुत अच्छा लगा। सेकंड खाया, जैसे ही आपने एक और यूनिट ली, टोटल कितनी खा ली आपने, 2, पर जैसी एक और ली, क्या आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आपको फर्स्ट से मिला? क्यों? क्योंकि फर्स्ट पे आप भूखे थे, आपको हंगरनेस थी, तो आपने उस टाइम पे तो उसको इजीली कंज्यूम कर लिया, बट सेकंड पे आते ही आपने उसे कम सेटिस्फेक्शन मिला, तो आपका स्टेटमेंट बदला, ज्यादा अच्छा भी नहीं, ठीक ठाक है। फिर आपने जैसे तीसरी यूनिट खाई, थर्ड यूनिट खाते ही आपको एक और एडिशन मिला, एक और खाया, फिर आप उसमें कुछ ना कुछ ढूंढने लगोगे, इसमें मिर्ची बड़ी अजीब सी है, स्वाद नहीं आ रहा है, या नमक कम लगने लगेगा, कुछ ना कुछ यू विल फाइंड इट। वाई? क्योंकि हमारा लेवल ही यही है, जब एक ही चीज हम बार बार खा रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ी कमियां शुरू में नहीं दिखी, पर धीरे धीरे दिखती हैं। फोर्थ, और डाउन हो गया, यानी यूटिलिटी हर लेवल ऑफ कंजम्पशन के साथ डाउन होती जा रही है, पर जैसे आप 6th यूनिट पे आओगे ये 0 हो गया। अब ये 0 कह रहा है कि बस अब और नहीं खा सकता। मैंने बोला ना कि जैसे आपको तीसरी प्लेट ऑफ पिज्जा खाया, आपका स्टेटमेंट निकला बस अब और नहीं खा सकता। सो हेयर कंज्यूमर सेड कि बस अब नहीं खा सकता, मीन्स सैचुरेशन आ गया, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन हो गया, अब इसके ऊपर वो कंज्यूम किसी भी हालत में नहीं कर सकता। अगर किया तो माइनस में गया, माइनस का मतलब जबरदस्ती आप कुछ खा लो जो अगर आपको नहीं खाना है, आपको प्रेशराइज करके खिलाया जाता है, तो क्या होता है, या तो वॉमिट हो जाती है, या स्टमक हो जाता है, या हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो ही जाती है अगर हम जबरदस्ती एक्स्ट्रा कुछ खा लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारा पेट भर गया, साइकोलॉजिकल भी भर गया, मेंटली भी भर गया, अब हम स्टॉप हो जाएंगे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिएटी। क्या बोलेंगे इसको हम? पॉइंट ऑफ सैटिएटी, SATIETY, पॉइंट ऑफ सैटिएटी। इसका मतलब सैचुरेशन आ गया, अब इस पॉइंट के बाद कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता। हम भी अगर इस पॉइंट पे बैठे हो तो मैक्सिमाइज हो गए, अब हम और कंज्यूम नहीं करेंगे। अब इसी को हमने डायग्राम के थ्रू दिखाया है। यहाँ पे OY एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। OX एक्सिस पे दिखाई है यूनिट्स ऑफ अ गुड, एंड यू कैन सी द कर्व, इट इज मेड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। पहले क्या है? इट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग बट रिमेन पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है हमारा एटीट्यूड फॉर द गुड्स, मीन्स अभी भी कहीं ना कहीं गुंजाइश है और कंजम्पशन की, यानी अगर उस गुड से हमारा अभी भी मन नहीं भरा है, हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो पॉइंट पॉजिटिव है। तो यहां तक हमें क्या दिख रहा है? MU रिमेन पॉजिटिव, राइट, क्योंकि अभी भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर जैसे हम यहां पहुंचे 0, दिस पॉइंट इज कॉल्ड दिस 0 से सैचुरेशन, क्या आ गया यहाँ पे कंज्यूमर का? सैचुरेशन, बस हो गया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता। Afterwards we have MU become
नेगेटिव। अब mu क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्यों नेगेटिव हो गया, क्योंकि अब हम सैचुरेशन से नीचे पहुंच गए, यानी अब अगर हम जबरदस्ती खा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं निकलेगा, या तो डॉक्टर के विजिट पे निकलेगा या वॉमिट के थ्रू निकलेगा। सो दिस इज हाउ वी मेजर आवर सेटिस्फैक्शन। तो जब तक हम सैचुरेटेड नहीं है, वी कैन कंज्यूम, वी रिमेन पॉजिटिव, आफ्टरवर्ड्स इट फॉल्स। So this is why this law applied everywhere. So this is how we have explained with the use of table and with the use of diagram. So whenever in exam you will ask for, you have to give a complete package of this information. अब इससे related, अब इसको complete कैसे करना, हमेशा याद रखना, in microeconomics it is full of diagram and tables. तो टेबल और डायग्राम को एक्सप्लेन करना जरूरी है। जैसे जैसे मैं आपको समझा रही थी ना, अब जैसे टेबल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यूनिट कंज्यूम, एज कंज्यूमर स्टार्ट्स consuming 1 and more unit of a commodity, utility start declining from 10 to 2. When he got it maximum satisfaction, utility term as 0 and units become 6. When we are focusing on the chart diagram, जब हम डायग्राम को देखते हैं, you can see, अब डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करना है, सिंपल, बहुत इजी होता है डायग्राम को एक्सप्लेन करना। पहले OY एक्सिस पे क्या लिखा है बता दो, फिर OX एक्सिस पे क्या लिखा है बता दो, फिर ये कर्व क्या कह रहा है बता दो, उसके बाद ये 3 पॉइंट जो मैंने दिखाया आपको, पहले प्लस माइनस सैचुरेशन, इस तरह से हम इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो 5-6 पॉइंट इसके बन गए, 5-6 पॉइंट इसके बन गए, हो गया आंसर पूरा। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इन योर बुक्स रिटन। तो कुछ अलग से नहीं है, क्वेश्चन का आंसर हम खुद बढ़ा सकते हैं और खुद ही कम कर सकते हैं। पहले आप इसकी ब्रीफिंग करिए, फिर टेबल बनाइए, डायग्राम बनाइए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। So this is all about today's session. That all I have taught you today. That is law of diminishing marginal utility. Fundamental law है, psychological law है, conditions है, इससे out of जाकर के ये law apply नहीं होगा। Like I told you, किसी भी तरह की different situation में, different atmosphere में law fail हो जाएगा, क्योंकि लोगों का behavior भी बदल जाएगा। तो हमें बिहेवियर को कंट्रोल करना है, बांधना है, तभी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड आई रियली सजेस्ट एक्सपेरिमेंट इट ऑन योर ओन। एक बार करके देखना, सेम कमोडिटी कंटिन्यू, यू विल रियलाइज दिस लॉ इज रियली एप्लीकेबल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।